मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया है। ट्रंप का कहना यह है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के बदले अमेरिका को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। ये तेल और गैस से जुड़ा है और इसके साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान इस डील को करने के लिए बेताब है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो अभी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो अमेरिका को हमला करने में देर नहीं लगेगी। मिडिल ईस्ट जंग के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। Tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. एटम बम पर ईरान अमेरिका में हो गई डील। It wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हुआ ईरान। Have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left. No radar left. No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि वो जंग जीत गए हैं। अमेरिका ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था, वो मकसद अब हासिल हो गया है। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me, we're dealing with the right people. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. ईरान के साथ चल रही बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशों पर ट्रंप का साफ कहना है कि वो ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष इस समय बातचीत कर रहे हैं और समझौते की संभावना बनी हुई है। Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करने और मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही ट्रंप ईरान को बार बार ये बताने से भी नहीं चूक रहे हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसका क्या नतीजा होगा। We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. ट्रंप तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक औपचारिक तौर पर इस बातचीत को लेकर बयान जारी नहीं हुआ है। उल्टे ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि पिछले 24 दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका इस युद्ध को
पूरे क्षेत्र में फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक अवैध युद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान के पास अपनी रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनका जवाब देना जरूरी है। ईरान की व्यवस्था मजबूत है और देश का नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय है। सुप्रीम लीडर पूरी तरह ठीक है और देश का सिस्टम प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। ये युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और उसे ही इसे खत्म करना होगा। ईरान अपनी रक्षा तब तक करता रहेगा जब तक जरूरत होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ईरान में जंग खत्म करने के मुद्दे पर बात किससे कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनकी ईरान में किससे बात हो रही है, या फिर ट्रंप का ये पैंतरा इस जंग में बाहर निकलने का प्लान तो नहीं, क्योंकि ईरान बार बार अमेरिका के साथ बातचीत होने के दावे को नकार रहा है। सूत्रों की माने तो मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ईरान के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। ये बातचीत अभी किस लेवल पर है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पाकिस्तान इस पूरे मामले में खुद को सुप्रीम हीरो दिखाने में जरूर लगा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हैं और ट्रंप इन दावों को रीपोस्ट कर रहे हैं। साथ ही भारत से भी वो बात कर रहे हैं। कल ही ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और मिडिल ईस्ट में जंग के हालात पर उनसे चर्चा की। पीएम मोदी ने भी उनसे हॉर्मुज खुलवाने के उपायों पर बात की। वहीं ईरान पाकिस्तान को अपना दोस्त तो मानता है, लेकिन भरोसा भारत पर करता है। तभी तो ईरान ने मंगलवार को बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, जबकि अमेरिका पर उसे जरा भी यकीन नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की 5 डे नो अटैक पॉलिसी एक्टिव है। बावजूद इसके मिडिल ईस्ट में अभी भी हमले जारी हैं। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। वहीं इजराइल भी ईरान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने में लगा है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से ईरान पर हमले जारी रखने की अपील की है। इसके पीछे सऊदी अरब का मकसद साफ है। वो जंग खत्म होने से पहले ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म होते देखना चाहता है। वो ईरान जैसे आक्रामक पड़ोसी के साथ नहीं रहना चाहता। ईरान की सैन्य ताकत को सीमित करना जरूरी है। सऊदी अरब का मानना है कि जब तक ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्षमता कमजोर नहीं होगी, जब तक खाड़ी क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में जहां अमेरिका और इजराइल अपने मकसद के साथ उतरे हैं, वहीं खाड़ी देश भी अपने फायदे के लिए उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में मकसद पूरा होने से पहले जंग खत्म होगी, इसकी उम्मीद कम है।